मोहन भागवत जी को उन्होंने मेरे को अरेस्ट करके पकड़ के लाने को बोला था, और ये सब ऑन रिकॉर्ड था, पूरा रिकॉर्ड पे था। मगर वो लोग बता रहे थे कि ये एटीएस में है ही नहीं। रामजी कलसंगरा और संदीप डांगे इनके कस्टडी में थे, इलीगल कस्टडी में थे, और मोहन भागवत को ला के वो तीनों को मिला के करने वाले थे वो। फिर उन्होंने नई स्क्रिप्ट लिख के कुछ ना कुछ करने वाले थे, वो फेल गया वो। अभी देखो, आप समझ के लो ना, समझ के लो ना। Viewers, if you were shocked by the Congress and the ecosystem saffron terror fakery, then please brace yourselves, because tonight we will unravel a tale so dark, so treacherous, it will shake the very foundations of truth and justice in our country. The Malegaon blast case, a 17-year-long saga of lies, coercion and fabricated narratives, has just delivered a bombshell that exposes the Congress party's sinister agenda, an agenda that went far beyond their saffron terror myth. Here it is. Now it seems, viewers, that their target was not just a saffron or the color or a shade, not just a faith, but the very soul of India's nationalist spirit, the Rashtriya Swayamsevak Sangh and its chief, Mohan Bhagwat. Viewers, this is not just a story of a political vendetta. This is a chilling revelation of a plot to eliminate, to silence, a plot to destroy. Under the guise of investigation, the system unleashed a singular mission. They wanted to pin the blame on Hindus, on nationalists, on patriots, and on the RSS. Sadhvi Pragya Singh Thakur and Lieutenant Colonel Prasad Purohit were just pawns, it seems, dragged into this nightmare. They were tortured, vilified, branded as saffron terrorists. While the court has acquitted all 7 accused, declaring there was no evidence, none to support the Congress's fairy tale of saffron terror, a darker truth has emerged, one that will send shivers down your spine. Viewers, the man on your screen, the man with which we started the show, this man, Mahbub Mujawar, a retired ATS inspector who was part of the Malegaon probe, has stepped forward with a revelation that exposes the Congress's true face. He was ordered, viewers, yes, ordered by his seniors, including the notorious Paramveer Singh, to arrest RSS chief Mohan Bhagwat. But this was no ordinary arrest order. Mujawar's words hint at something far more sinister, a plot to do something to Bhagwat, in his words, to eliminate the man who echoes the vision of a strong, united Bharat. This was not just about framing the RSS, viewers. This was about striking at its heart, silencing its voice, and crushing its spirit. The Congress, the party that preaches Muhabbat ki dukaan, was running a Nafrat ki dukaan of the most venomous kind. Their target was not just Sadhvi Pragya or Colonel Purohit, it was the entire Sangh Parivar. Because the RSS, with its unwavering commitment to Sanatan and Bharat's unity, stood in the way of Congress's vote bank politics, Congress's appeasement agenda, their desperate bid to cling to power. This was Sangh phobia in its ugliest form, a calculated conspiracy to demonize and destroy the Sangh. And what does the Congress do now? In the face of this damning exposure, they don't apologize for the lives they've ruined, for the faith they've maligned. No, they double down. Defiant and unrepentant, they now say Sanatan terror, as if branding an ancient, eternal way of life as a threat will somehow salvage their crumbling narrative. Like I said, viewers, this is not just plain intolerance. This is a declaration of war against the very ethos of Bharat. The Malegaon verdict lays bare the Congress's toolkit: create a bogie, weaponize agencies, torture innocents, and poison the public mind. They did not just target individuals, they targeted an idea, a culture, a civilization. They called it saffron terror to vilify Hindus, Sanatan terror to smear our timeless values, and Sangh phobia to crush those who dare to stand for a Mazboot Bharat. But truth, as you know, has a way of breaking free. And here it is before us. So I'm asking you, viewers, will we let this treachery go unanswered?
Sample what Congress's Prithviraj Chavan said. देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि भगवा शब्द का प्रयोग न करें। भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है। ये भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था, जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लें तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। Don't call it Bhagwa terror, call it Hindu terror, Sanatani terror. That is the advice from Congress's Prithviraj Chavan. Let's open this up, viewers. Shehzad Poonawala, the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Ravi Shankar Ravi, spokesperson of the Rashtriya Janata Dal. Ashwini Kumar Mishra ji, leader of the Congress Party. Professor Atikur Rahman. Adil Hassan, national spokesperson of the AIMIM. And Karan Verma completes this panel. अश्विनी जी, आपने ये डिस्क्लोजर तो सुना होगा, फॉर्मर ATS ऑफिसर, he is saying that he had orders to eliminate Bhagwat, to pick him up and do something. वो बोल रहे हैं कुछ करने बोला था. Pranesh, people can create any narrative, can say any lies. You cannot trust on someone's words because they wanted to express their concern after 11 years or after 17 years. Was he sleeping earlier? So I think it is all false narrative being created against the very ethos of the India. You rightly said that if we are not the one who is vilifying the Hindus, it is the Bharatiya Janata Party, the Hindus who used to be Sarve Bhavantu Sukhina, the Hindus who used to be the most tolerant, the Hindus who believed in sacrifice are now being radicalized. Starting from 1948, the first terrorist of independent India was Nathuram Godse. So RSS, BJP and its ideology is creating Hindu radicals. There is no doubt about it. Right. However, we Hindu Congress radicals, Party right? does not differentiate Ashwini religion. ji, based you on- just said Hindu radicals, right? ये राहुल गांधी ने भी US एम्बेसडर को यही कुछ कहा था. The threat of growing threat of Hindu radicalization. आप याद रखिएगा, you've used the word, this is all lies. Was he sleeping for last 11 years? All of this will come back to you during the show. So just keep this in mind. Now let me ask you about the second person that we are talking about. Prithviraj Chavan. Is he also lying? Do you know what he said? Saffron terror mat boliye. Hindu terror boliye. Sanatan terror boliye. Pranesh, for Congress Party, anyone who is involved into terrorist activities, terrorist irrespective of their caste, creed, religion, for us there is no one who can do crime or who can create terror in the name of religion. We don't support that. What we are telling is that people should not be judged because of their religion. If you अश्विनी are जी, doing- why are you confusing the viewer? पृथ्वीराज चौहान ने क्या कहा है? उन्होंने कहा था ऑपरेशन महादेव में महादेव सेक्युलर नहीं है. अब वो कह rहे सनातन टेरर कहिए. What is सनातन टेरर? Would you care to explain? You know who coined this, Pranesh, you know who coined this term Hindu terror? It was S.K. Singh, who's promoted in the BJP government. So this is the problem with the Bharatiya Janata Party and its ecosystem. They want to keep this nation get divided Okay, on the before lines you of- shift the blame on the BJP, and Shehzad Poonawala will answer that question. 1 minute. You answer for Mr. Chavan. He is not from the BJP. What does he mean by Sanatan terror? See, Mr. Chavan might have his opinion on what it should be called. We are telling no terrorist should be called by their religion because Okay. terrorism doesn't have a religion. Now, Terrorism no, doesn't have. 1 minute. Ashwini ji, इतना आसान नहीं है, ऐसे नहीं. Do you endorse what he says? सनातन, अच्छा चलिए ये बताइए, सनातन टेरर होता है हाँ या नहीं? This is Pranesh, there are terrorists in every religion. There are radicals in every religion. So you cannot call the entire religion as
terrorists, neither Muslim or Hindu or Sanatani or Christians or Jews, because we believe mosques, mandir, churches all take it to one path, that is God. Anyone who does the terrorism in the name of religion is a terrorist irrespective of their religion. Okay, so Nathuram Godse had invoked God. Abhi bola aapne he was the first terrorist. Which religion did he invoke? Nathuram Godse was the first terrorist of independent India. I know. Which religion did he invoke? He killed Mahatma Gandhi. I am with you. I am saying you can call him a terrorist. I am asking you on the basis of what you've just said, that terrorists invoke religion. What religion did he invoke? No, I am not saying because of him I am not saying he became terrorist because of his religion. I am saying anyone who is involved in creating who is involved in doing a terrorist activities is a terrorist. You cannot just अश्विनी जी, ये तो मुझे पता है. अगर ऐसा ही है तो फिर कांग्रेस सैफरन टेरर, हिंदू टेरर, सनातन टेरर क्यों बोलती है? It was given by S.K. Singh, who has been promoted in the BJP government. It was not coined by Congress party. It was coined by then MOS Mr. S.K. Singh, who has got multiple promotion by the Janata Party government. Let's Ask get him. ओके मैं एक मिनट पहले उनको सही तो कर दें. एसके सिंह नहीं है वो. मेरे लिए तो कुछ छोड़ दो. ओके, एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा था कि पहले बता दो कि हमको एसके सिंह है कौन. ये एसके सिंह तो मैंने देखा नहीं, पर मैं आपको बताता हूं किस किसने बोला हिंदू टेरर. चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, AR आंटुले, Mr. Salman Khurshid, Hindutva as ISIS, Boko Haram. Thereafter, we have series of statements which have been given even now by Prithviraj Chavan, by Vijay Wadattiwar. So whether it is 17 years ago, 20 years ago, or whether it is today. And look at the pattern, consistent pattern. In 2004 to 14, when Islamic jihadi terrorism was grappling the entire world, when there were big bomb blasts in Mumbai, Pune, Chennai, Hyderabad, Coimbatore, every part of the country, at that time the entire blame was taken out from Islamic Jihad. The people who were caught in Malegaon Part 1 were released, and then the entire accusation was put on the Hindu groups, which included the likes of sadhu sants like Sadhvi Pragya. They included the likes of soldiers like Mr. Purohit. It included the likes of Rashtravadis from the Sangh Parivar, which includes Mohan Bhagwat ji and Yogi Adityanath. So Sangh, Sena और साधु संतों का सनातन का अपमान became कांग्रेस की पहचान. In fact, this was the narrative that Rahul Gandhi gave. He told the ambassador that look, LET is not dangerous. What is dangerous is the Hindu terror groups. This is the narrative that went on. Secondly, I want to ask that today, you know what kind of whitewashing they did? Because we have Mr. RJD spokesperson here. You know this photo of Times of India published it in 2005. It looks very innocuous. Osama bin Laden look-alike joined the RJD party and he was used as the campaigner chief in 2005. When Simi was banned by Supreme Court, Lalu Prasad Yadav and Mr. Mulayam Singh Yadav said Simi is innocent. So when Supreme Court also put a ban on the Islamic terror groups, at that time they were giving the clean check, just like now. In Chidambaram has given the clean check to Pakistan in Pahalgam. And immediately, even after the verdict of 17 years, you have Mr. Prithviraj Chavan coming and saying that there is Hindu terror, even though the entire theory has been demolished with the evidence and witnesses fabricated. But one last point. Not just Mr. Mehboob Mujawar, who has disclosed that how they wanted to plot against the RSS. There is one more person, Mr. Milind Joshi. So he has also shown how the witnesses were coerced into taking the names of nationalist leaders. And this is the entire thing. And this is because the Congress hates Hindus. Right from 1948, opposing Somnath, division of the country, opposing Ram Mandir, Waqf Act, 2611, blaming it on Hindus, right. Pulwama, Samjhauta, Pahalgam, blaming it on Hindus, Sanatan Samapt, Ramji does not exist. There is a series of anti-Hindu hatred that has been perpetrated by Ashwini ji's party, and therefore getting wrong names and blaming the things on wrong people doesn't matter. Mr. Ashwini, please tell me 5 statements of your leaders who have said Islamic Jihad for Pahalgam. There also within 24 hours, Robert Wada said Hindutva. Let him answer. Is he a MOS with us? Shahjad, you tell me this. We blame Pakistan because they are radicalizing people in the name of Islam. If we also start radicalizing
radicalizing people Do you in the blame in the Pakistan? name of Hinduism. What is the Ashwini. difference between you and us? So we are Ashwini, telling let him all speak, sort of please. radicalizations are not, we are not okay with. And don't tell that we are against Hindus. I am Hindu, I am Brahmin, and I am representing Congress here. We talk about inclusiveness. Unlike you, your vote ki roti just works on a Hindu-Muslim and Ashwini ji, He made a pure comment on me. Let me respond. No, Let 1 me minute, respond. 1 minute. Let me Shahzad, respond. one- He said calm that down, we 1 minute, blame, 1 minute, 1 we minute. blame Pakistan. Please tell me Mr. Chidambaram blamed Pakistan. नो ही डिड नॉट. अश्विनी जी, आप कह रहे हैं कि मैं खुद प्राउड सनातनी हूं. आप कंडेम कीजिए पृथ्वीराज चव्हाण को, बाकी सब छोड़ दीजिए. आप सिर्फ बोलिए पृथ्वीराज चव्हाण गलत बोल रहे हैं. देयर इज नथिंग एज सनातन टेरर. अश्विनी जी, allow me 20 seconds to reply. जी, बोलिए सर. हाँ, सो यू आस्क फॉर चिदम्बरम. चिदम्बरम ने बोला है कि हमने जो पाकिस्तान जो टेररिस्ट थे वहां अटैक किए थे, डू वी हैव इनफ एविडेंस टू पुट इट ऑन द इंटरनेशनल व्हाट एविडेंस डिड यू हैव ऑफ सैफरन टेरर? राहुल गांधी ने साध्वी प्रज्ञा को टेररिस्ट बोल दिया. कहां था इनफ एविडेंस? छोड़ दीजिए, क्या एविडेंस था? अश्विनी जी, तैयारी के साथ आइए, नहीं तो ये एक्सपोज हो जाते हैं यहां पे. 1 मिनट, अभी आप बताइए. आपने कहा आई एम अ प्राउड सनातनी. कंडेम पृथ्वीराज चव्हाण, वो बोल रहे सनातन टेरर. 2 बार ये अपने आप हमले हो गए, लोग मर गए, हमले हो गए. आप जवाब क्या नहीं ये देंगे, आप समय बर्बाद कर रहे हैं. रविशंकर, Just one question. You can be a very proud Hindu. That is not the problem. The problem is that even though you have a Hindu name, you are attacking the Hindu faith. And I challenge Mr. Ashwini, show me one statement of Rahul Gandhi where he has said Islamic jihad for what happened in Kashmir. चलो कश्मीर में तो there's no doubt ना, रलीफ सलीफ गलीफ के नारे मस्जिदों से लगे भाई. 7 लाख कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ. मिश्रा जी, हंसने की बात नहीं है, पंडितों को मारा गया. आप हंस रहे हो क्या? बेशरम हो आप. ये बेशर्मी है. नाम से हिंदू नहीं, कर्म से हिंदू बनो. ओके, अतीतुर रहमान जी कुछ बोल रहे हैं. अतीतुर रहमान, आई एम कमिंग टू यू. आपके लिए भी सवाल है सर. 1 मिनट. लेट्स ब्रिंग इन रविशंकर. रविशंकर जी, आप पे शहजाद पूनावाला ने आपसे एक सवाल पूछा, सिमी पे पूछा, जो आप लोग एक अपीजमेंट करते हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं. वो सब आप बाद में जवाब दीजिएगा या छोड़ दीजिए. मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि ये जब राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य जो बड़े नेता हैं सैफरन टेरर, हिंदू टेरर, सनातन टेरर बोलते हैं, तो क्या ये सेक्युलरिज्म है? Pranesh ji, in today's NIA's court decision, the court also observed that terrorism has no religion. सर, मैं कोर्ट पे पूछ ही नहीं रहा हूं. मैं आपको कांग्रेस के जो नेताओं ने कोर्ट वाला डिबेट कल कर लिया सर हमने, आज हम ये दूसरा वाला कर रहे हैं. So, I mean, these kinds of words should not be uttered for any religion. One or few mad pervert or radical people from any religion, because of them, the entire community, the entire religion. Then why is the Congress party doing this? देखिए, पृथ्वीराज चव्हाण ने कल शाम को वर्डिक्ट के बाद बोल दिया सनातन टेरर है. वेयर इज द आउटरेज? It is happening from हैपनिंग all parties. कहां है ऑल पार्टीज? बताइए. दूसरा blaming इसका कुछ each other. ऑपोजिट बताइए. सनातन टेरर का ऑपोजिट क्या है? भाई, कुछ है? इस्लामिक टेरर नहीं यूज होता. बताइए ना. इस्लामिक टेरर इस्लामिस्ट टेरर, इस्लामिस्ट टेरर तो रियलिटी है. ये लश्कर जो है वो क्या है? I mean, this is again for few people belonging to Islam religion or coming from Islamic अच्छा, चलिए. religion. You call मैं them एक the और entire एक Islam आसान is a सवाल पूछता हूं, terrorist करण, देन यू कम इन. religion is not मुझे true. ये बताइए, अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, इन्होंने कहा, पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, ऑपरेशन महादेव इज अ कम्युनल नेम. हिंदुत्व एजेंडा है. महादेव कम्युनल है? बोलना है इसमें. हाँ, आपको ही पूछ रहा हूं. नहीं, आपकी स्थिति नहीं, समझ भाई, सकते हैं. नहीं, आप नहीं, तेज स्थिति- प्रताप वाले फैक्शन से तो नहीं हो. तेज आप प्रताप देखो, शिव जी को मानते हैं. नहीं, उनको तेजस्वी मटन इंसाफ, खाते हैं. ऑपरेशन इंसाफ तेजस्वी मटन भी खाते हुआ हैं, है तेज प्रताप इंडियन खाते आर्मी का. ऑपरेशन इंसाफ भी हुआ है. तो उससे महादेव कम्युनल ऑपरेशन मेघदूत भी हुआ है. हुआ है ना. ऑपरेशन स्माइल
स्त्रीलिंग मुद्दा भी हुआ कह रहा हूं है। कि भाई बजरंग बली की जय बिहार रेजिमेंट का नारा है। आई नो ऑल दिस। अच्छा, उनको सियावर बोले- रामचंद्र की Let जय him- let him राजपूताना answer. राइफल्स का नारा है। The names that are used or that are chosen for these operations, they should also come from all the traditions. तो ये If कम्युनल you हुआ want- ना, if क्योंकि you want to महादेव, make a अच्छा strong इसका क्या country- नाम, और इसको सेक्युलर करने के लिए क्या नाम रखते हैं बताइए। ऑपरेशन औरंगजेब। ना, ऑपरेशन औरंगजेब रखते हैं। यही एक वर्ड है। ऑपरेशन औरंगजेब से क्या खराबी है? आप वही रखते थे। ऑपरेशन फतेह महादेव पीक का नाम है, माउंटेन का। हिंदू मुस्लिम हो गया माउंटेन, वो माउंटेन का नाम महादेव है। ऑपरेशन फतेह नहीं इनको हो सकता। पता नहीं। अरे आप ऑपरेशन फतेह ही अल्लाह करते रखा रहो। नहीं हो सकता। आप फतेह ही करते रहो। आप मुझे एक बात बताइए। नहीं नहीं, हो तो कुछ भी सकता है, हाँ, लेकिन तो एक- सब रखना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। अगर वो नहीं रखेंगे तो ये कम्युनल होगा ना। नहीं, एक ऐसा भी सेकंड, नहीं है। एक सेकंड, लेकिन आप- नाग, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, ये किसने नाम रखे हत्यारों के अपने? ये किसके जमाने में नाग, पृथ्वी, अग्नि, ये नहीं कब- भाई, आप रखो ना। नहीं, कौन कह रहा है मत नाग रखो? मुस्लिम है क्या? मुस्लिम वही नाम है बात। नाग। अब अब देखिए, नाम में भी देखेंगे अब तो तो आप snake पृथ्वीराज का नाम धर्म, गौरी रखो, dog का भी धर्म, पृथ्वीराज का नाम गौरी रखो, जानवर का भी धर्म लालू जी देखिए। का नहीं नाम तो जो आप है, लोगों ने मजाक लालू बना जी दिया का ना। नाम- लालू जी- हर राबड़ी चीज जी में का आप नाम पॉलिटिक्स ले रूबिया आते हैं। रखो। ओके राबड़ी जी करण, का now रूबिया 1 minute, रखो। 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 राबड़ी जी का minute, नहीं calm down, रखो। let's not रूबिया। talk over each other please। रूबिया जी रखो। 1 minute शहजाद, calm down, relax। अश्विनी जी आ रहा हूं आपके पास, अभी तो आपसे सवाल जवाब हुआ सर, टेक अ ब्रेक, अभी आ रहा हूं। देयर आर अदर्स हु हैवंट स्पोकन। करण, you were on the panel when we were discussing ऑपरेशन महादेव। बिल्कुल। ये फिर वही शुरू हो गया, अब तो सनातन टेरर हो गया। नहीं, वैसे तो बात इनकी सही है कि इट्स अ माउंटेन, बट इवन इफ इट्स नॉट अ माउंटेन एंड इट टॉक्स ऑफ आवर महादेव हु इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल इवल, तो व्हाई इज इट रॉन्ग? आई मीन, वेयर डू यू हैव अ प्रॉब्लम? डिस्ट्रॉयर ऑफ इवल ही तो होंगे ना महादेव। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी भगवान राम का चित्र है। हमारे सुप्रीम कोर्ट, जिसके ऊपर लालू जी कन्विक्टेड नहीं है, अभी आप बोलते हो ना हर बार, लालू जी सुप्रीम कोर्ट से तो अभी कन्विक्ट नहीं हुए, उसका नारा है यतो धर्म ततो जय, दैट इज फ्रॉम आवर महाभारत। तो आपको अगर हर चीज सनातन से प्रॉब्लम है, बट प्रणेश, आई वांट टू मेक अ लार्जर पॉइंट हियर, इट इज नॉट जस्ट द सिमेंटिक्स ऑफ इट। ये एक बैठ के पूरी साजिश थी, एंड दिस हैज बीन वेरी ब्यूटिफुली इलस्ट्रेटेड बाय आरवीएस मनी, and in an interview to Times Now back in March 2016, and in his book, which is The Myth of Hindu Terror, Inside Account of the Ministry of Home Affairs, he clearly goes on to say how Digvijay Singh, a former CM, how P. Chidambaram, a home minister, how they coerced him to pass the second affidavit, implicating that it was a false encounter of Ishrat Jahan and the 3 other LET terrorists. He was asked to implicate his fellow IB officers at that time, and he's also gone on to say, in fact, Rakesh Maria in his book, let me say it now, has said that if not for Tukaram Ombole ji, Ajmal Kasab would have also been passed off as a Hindu terrorist. This is the conspiracy they hashed, and because ये लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी से बैठे, जब लालू यादव थे 2002 के टाइम पे रेलवे मंत्री, गोधरा का जो पूरा कांड हुआ, गोधरा ट्रेन बर्न करी गई, उसको इन्होंने एक कमीशन बना करके कह दिया ये एक एक्सीडेंट है। सोचिए जरा किस हद तक ये गए थे एक क्लीन चिट देने के लिए, जो कि सोची समझी साजिश थी। बाद में ही वाज reprimanded by the Nanavati Commission and the Supreme Court. They did this hideous job. Right. Time and again they've done acts which have tried to show Hindus in a negative light. I must thank here Tukaram Ombole. अगर वो नहीं होता और अगर कांग्रेस 2014 में बाहर नहीं गई होती, हम लोग सोच रहे होते शायद हिंदू टेरर कुछ होता है। इन्होंने उस कदर नैरेटिव को पेडल कर दिया था यहाँ, और अश्विनी जी जैसे सो कॉल्ड हिंदूज उस पर मुस्कुराते रहते। जब गालिब सालिब की बात होती है या जब 7 लाख कश्मीरी पंडितों की बात होती है, ये कहते कहां हुआ, वेयर डिड इट हैपन, ये ऐसे ही मुस्कुराते रहते। आदिल भाई, आदिल हसन, जब ये वर्डिक्ट आया, एक तो आपसे कंप्लेन ये है कि आप एक हफ्ते बाद आते हैं, आते नहीं है रेगुलर, और फिर अभी आप बोलेंगे कि आप बोलने दीजिए, मुझे समय नहीं देते। तो ये लाइन मैंने पहले ही बोल दिया, अब आप उसको रिपीट मत करना। आप सवाल आपसे ये है कि असादुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम इसको चैलेंज करेंगे। आप चैलेंज कहां करेंगे? सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं मानते। बाबरी के बाद कहा था ब्लैक डे फॉर जुडिशरी। अब स्वामी रतंबरा को जब पद्मश्री पद्म विभूषण दिया जाएगा, मोदी सरकार में क्या बोलेंगे? आरके सिंह होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने भगवा टेरर की बात की, 10 साल बीजेपी सरकार ने उसको मंत्री बना के रखा, तब क्या बोलेंगे? रक्षा मंत्री बोलते हैं कि कोई सैनिक शहीद नहीं हुए, बेचारा इम्तियाज छपरा का ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहीद हुआ, क्रॉस फायरिंग में 10 लोग शहीद हुए, बिहार के 2-3 लोग शहीद हुए। पर रक्षा मंत्री सदन में झूठ बोलेंगे, अमित शाह सदन में झूठ बोलेंगे कि कोई हिंदू टेररिस्ट नहीं है। नाथूराम गोडसे कौन था, पूरी दुनिया जानती है। तो इतना ज्यादा अमित शाह अपने बेटे को नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान से क्रिकेट मत खेलो बेटे, ये उसको मना नहीं करेंगे, खाली भाषण
बाजी देंगे। लोकसभा में बोलते हैं हम पीएको को ले लेंगे और रक्षा मंत्री बोलते हैं नहीं नहीं पीएको को नहीं लेना है, जबकि लोकसभा में रेजोल्यूशन पास है। जबकि ये बात पूरी दुनिया जानती है। जब डीजीएमओ गड़गड़ा रहा था तो कुलभूषण जाधव को क्यों नहीं ले लिया? जो फिशरमैन को पाकिस्तान पकड़ा उसको क्यों नहीं ले लिया? पाकिस्तान को उसकी औकात क्यों नहीं दिखलाया? यही दूल्हे भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को विदेश भेजा गया। मोदी सरकार संबित पात्रा को, शहजाद पूनावाले को, प्रदीप भंडारी को, सुधांशु त्रिवेदी को नहीं भेजा। वही शशि थरूर साहब, सलमान खुर्शीद साहब, मनीष तिवारी जी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेजना पड़ा, कुनुमोई जी को भेजना पड़ा, सुप्रिया सुले जी को भेजना पड़ा। पूरी दुनिया जानती है। मालेगांव में करकरे साहब ने क्या कहा? करकरे साहब तो कोई कांग्रेस और राजद और एमआईएम के मेंबर नहीं थे, वो एक आईपीएस फाइन ऑफिसर थे। उन पर उनकी शहादत पे क्या बोला उसने, साध्वी ने, उस पर आप कुछ नहीं बोलिएगा। तो प्रणय साहब और मैं चाहता हूं आपके पैनल में लोग बदलते रहे। लोग पक गया है। करण को देखते हुए, शहजाद पूनावाला को देखते हुए नया पैनल लाइए, बदलिए। एक ही आदमी से कितना अपने लिए बैटिंग करवाइएगा? कुछ फ्रेश चेहरा लाइए, बदलिए। हम भी इसलिए दूसरे को मौका देना चाहते हैं। कितना हम ही आएंगे अकेले? सब लोग को मौका मिले। वही रटा कैसे चलवाते हैं बड़े भाई। चलिए, कितना दिन चलाइएगा? कैसा लग रहा है अब आपको बोल के? देखिए, पूरा बोलने दिया आपने, जो याद करके आए थे बोलने दिया पूरा। आदिल भाई, पूरा बोलने दिया। अभी आप बिहार चुनाव में वहां कैंपेनिंग में घूम रहे हैं। आपने सोचा इससे पहले कि माइक म्यूट हो, एक सांस में बोल दो। जो सवाल था वो रह गया, बाकी सब कह दिया आपने। सैफरन टेरर होता है, हिंदू टेरर होता है, सनातन टेरर होता है, ये है सवाल। मेरा सवाल यह है, आसिमानंद का, मक्का मस्जिद ब्लास्ट का, अजमेर ब्लास्ट का, समझौता ब्लास्ट का और मालेगांव मामला का, सबका सुप्रीम कोर्ट के एसआईटी से, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से अमित शाह में है ईमानदारी। अमित शाह, मैं आपको बता देता हूं, देखिए ईमानदारी और जो फैक्ट्स की बात है, असीमानंद का नाम आपने 2 बार ले लिया। क्लीन चिट है उनको। कहां से, कौन सा कोर्ट, शरिया कोर्ट ने कन्विक्ट किया उनको? कौन सा कोर्ट है? पढ़िए जरा। आप मोबाइल लैपटॉप आप भी चलाते हैं, आप उसमें देखिए। असीमानंद का नाम आपने 2 बार लिया। कौन से कोर्ट ने कन्विक्ट किया बताइए आदिल हसन? सिटिंग जज से। सर, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या वर्डिक्ट दिया, उसको आप लोग मानते नहीं है। अभी आप बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से जांच करा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में मानते हैं आपके असद साहब? नहीं मानते हैं। वो उन्होंने अयोध्या के वर्डिक्ट को कहा है ब्लैक डे फॉर जुडिशरी। शहजाद, देखिए, ऐसा है कि 50-60 साल से जो एक पार्टी के नेतृत्व को चला रहा है और एक सीट से आगे बढ़ नहीं पा रहा है पूरे देश में, जहां पर इतने सारे मुसलमान हैं, वो कितने लोगों से कितने पक गए, वो ज्यादा हमको ना बोले। आजकल जो रजाकार के वंशज वफादार बनने की कोशिश कर सकते हैं, पर 2-3 सवाल है। इन्होंने अभी कहा कि ये कैसे छूट गए, बेगुनाह नहीं है, ये लोग गुनहगार है। ये एक और फैसला आया था मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का, उसमें भी लोग छूट गए। एक बार बैरिस्टर साहब ने बोला कि जो लोग मारे गए मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में, उनके लिए मैं खड़ा हूं और ये अक्यूज जो है, जो छूट गए हैं, इनके खिलाफ केस हो। नहीं, क्योंकि वहां पर धर्म देखा। धर्म देखने के बाद पता चला है कि मुस्लिमीन है, तो मुस्लिमीन के लिए तो कुछ नहीं बोलना है और दूसरे में बोलना है। अब मैं तीसरी बात, देखिए आदिल साहब गुस्सा मत होइए। आदिल साहब, आतंक का कोई धर्म नहीं होता ना, ये आपकी लाइन है, पर आतंक का धर्म होता है, ये ओवैसी साहब ने बताया। आपको पता है कैसे? याकूब मेमन हैज बीन हैंग्ड बिकॉज ही इज अ मुस्लिम। ओवैसी, सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन को फांसी दी। ओवैसी कहता है कि इसलिए फांसी दी क्योंकि वो मुसलमान था। तो आज तो एमआईएम खुद मानती है कि आतंकवाद का तो एक धर्म होता है, और अगर वो धर्म मुस्लिम है और उसको सजा कोर्ट भी दे तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये तो इनका स्टैंड है। Okay, let's get a response. No, you made a point. Let's get a response. Otherwise, उनकी भी बात तो कंप्लीट नहीं, उनकी बात तो अगले डिबेट में करेंगे। आदिल हसन, सुनिए, शहजाद भाई सुनिए, शहजाद से पूछिए, उसका पुराना वीडियो निकाल देता हूं। नरेंद्र मोदी को पानी पी पी के गाली दे रहा था। सवाल का भी जवाब दे दीजिए ना। वही वीडियो पे बैटिंग करते रहेंगे। आपने मुझे बैटिंग बोला, समय कम था, लेकिन मैं बोल देता हूं, नहीं तो आपको लगेगा इसका जवाब नहीं आया। देखिए, ऐसा अगर आपको बैट्समैन चेंज करना है तो एआईएमआईएम के जो चीफ है ना, उसको भी बदलिए। बाकी जो मुसलमान है उनको भी मौका दीजिए जरा बैटिंग करने का। हमेशा असद तो वैसी बैटिंग करेंगे क्या? और कोई नहीं मिल रहा है? आप ही को बना दे ओपनिंग में, आपको ही ले ले, या आपके जो बाकी वो बिहार के जो चीफ है। क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है। प्रणेश, मेरे तो वीडियो बाद में चला लेना, पर
आरजेडी ने जब इनके 4 विधायक तोड़े थे तब ये आरजेडी को क्या क्या गाली देकर 3 तलाक देते थे, आज हलाला करने को तैयार है। आज राजनीतिक हलाला करने को तैयार है उनके साथ। लेटर लिखा है, लेटर। One person who hasn't spoken, Atikur Rahman, sir, thank you for being patient. What do you make of this narrative that there is Hindu terror, Sanatan terror? It's a bitter truth, Pranesh, if you want to listen. Can I begin? Please don't interrupt. Thank you. So far, Shehzad will continue to say, no, if you want to make fun of me, I will remain silent. If you want to make fun of the other panelists... You were silent for the last 29 minutes. Now, if you want to stay silent even after this, it's your choice. But aap boliye, sir, I'm asking you a question. Why are they having this funny faces when I began to speak? Because I am Islamist. I am Islamist. So too you are Hindutva. ये कैसा विक्टिम So उनका too है? you are अतीकुर रहमान, आप तो इससे अच्छा कर सकते हैं सर। आपने वही दूसरा कार्ड वो आदिल भाई वाला ले लिया। You want to set the narrative, and your narratives are wrong. Your narratives are constitutional. You are making people worry about this country because you laugh at the others. You laugh at the opposition. You are telling Adil Bhai कि एक सीट लाती है AIM. अरे आदिल भाई रथ यात्रा निकालिए ना, 2 सीट से आपकी हो जाएंगी 303. रथ यात्रा सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है अतीकुर रहमान, देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर लाइन। 1 मिनट, 1 मिनट। आपका लाउड स्पीकर नहीं चल रहा। लाउड सर 1 मिनट सर, आराम से बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। यस आदिल भाई, इन्होंने कहा कि आपकी सिर्फ एक सीट आती है, आपको असद भाई को रथ यात्रा निकालना पड़ेगी, अडवाणी जी जैसी, तब जाके 2 सीट से आपकी 330 बनेंगे। ये है कड़वी सच्चाई। नो लेट हिम स्पीक, नो डोंट टॉक ओवर हिम। आप ठेके लगाइए, अरे शर्म नहीं आती है शहजाद। और अतीकुर रहमान आप बहुत गुस्से में है, सुनिए एक सवाल है सर। ऑपरेशन महादेव हुआ, 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट वर किल्ड, इज द नेम सेक्युलर और कम्युनल? So far, Pranesh, they apologize to me. I will not speak. And you two are having hand and glove with them. You two are smiling. You don't. I have to know 1 minute. No, smiling is a crime. Is smiling a crime? What? Okay. उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ जो हुआ वो क्राइम था या किसी के बात पे हंसना क्राइम है, बताइए अतीकुर रहमान। Moment I started speaking, you all three laughed Don't, at me. if you don't have an answer to the question, you say that I can't answer this. Don't resort to such, stunts on television. Atikur Rahman, I'm asking you again, is there anything wrong with the name Operation Mahadev? I am not going to give any reply. So far, all 3 of you apologize to me. Okay, sir. I am sorry. आप जवाब दीजिए, sir. Atikur Rahman, I am sorry. Also, these two. I will apologize when you apologize to Sadhvi Pragya. I will apologize when you apologize to Colonel Purohit. I will apologize when you apologize to Sangh Parivar. I will apologize when you apologize to Hindus. I will apologize when you apologize to India. First you apologize to India. पहले आप आरएसएस को टेररिस्ट बोलते हो, हिंदुओं को टेररिस्ट बोलते हो, साधु संतों को टेररिस्ट बोलते हो। इनकी पार्टी ने बोला आरएसएस शुड बी बैंड बिफोर पीएफआई। इनकी पार्टी ने रामचरितमानस जला है और ये लोग यहाँ पे आके ज्ञान देंगे। He was on Times Now after the Malegaon verdict. प्रणेश, एक सीरियस बात मुझे बोलनी है। इन्होंने स्टार्टिंग इस नोट पे करी कि ये एक बिटर रियलिटी है कि हिंदू आतंकवादी है। ये हमारी सहिष्णुता है कि हमने इसको स्माइल से लिया कि चलो स्पोर्टिंगली ले लेते हैं। आपने बिलो द बेल्ट एक चीज बात बोली, आपने पूरी एक रिलीजन को गाली दे दी, एंड वी टेक इट विद अ स्माइल, एंड देन यू हैव द ऑडेसिटी टू शाउट एट अस. You are the one who should be apologizing right now. Mr. Atikur Rahman, you get riled up, you start throwing tantrums the minute we say anything remotely close to this. हम तो कभी नहीं कहते सारे मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, हम तो कुछ भी ऐसा नहीं कहते। आप औरंगजेब के लिए चिल्लाने लग जाते हैं यहाँ पर। आप पूरे हिंदू को आतंकवाद बोल देंगे, हम एक स्माइल से लेंगे तो भी आप गला काटने आ जाएंगे। ओके, बट अतीकुर रहमान 1 मिनट, आप चाहते हैं कि ये कोई अपोलोजाइज नहीं करे और आप बच जाए। मैंने सॉरी बोल दिया, मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए। यू डोंट आंसर देम। आई एम आस्किंग यू, ऑपरेशन महादेव सेक्युलर है, कम्युनल है? Drop me from the panel or drop Karan and Shehzad.
सर ऐसा है, 1 मिनट अतीकुर रहमान, आई हैव बीन पेशेंट विद यू एंड टॉलरेंट दिस ब्लैकमेल वोंट वर्क विद मी. आई डोंट हैव टू ड्रॉप यू सर. वो इंटॉलरेंट, आप बोलते रहिए और आप प्रोटेस्ट में, आप फ्रेम में रहिए. इट्स ओके. यू डोंट हैव टू बी ड्रॉप्ड. इट्स ओके. आपके पास जवाब नहीं है एंड देन यू डू दिस. अश्विनी जी, Ashwini laughed on Kashmiri Hindus. That time the Atikur Rahman didn't feel anything. No. He will not feel anything. He comes with an agenda. He does not have answers. इसीलिए वो जवाब नहीं देना चाहते. अश्विनी जी, calm down. आप 1 मिनट. No one is asking you to apologize. ऑपरेशन महादेव सेक्युलर है, कम्युनल है? Why BJP should apologize? BJP should apologize. We are secular party like our constitution. We talk about all castes, all religion as same. They are all different path. Take us to God. I want to ask the question to Karan. Answer. He said that we only call Islamic terrorism, but we don't call entire Islam as a terrorist. So then someone says Hindu extremist. Why do you think we are calling all Hindus terrorists? Who said that? What is this duplicity, Karan? You only just now said कि हमको नहीं बोलते सारे मुसलमान. पहलगाम में क्या हुआ था? पहलगाम में पैंट उतार करके, चिन्हित करके किसको मारा गया था? क्या था वो? विक्टिम तो हिंदू था ना, क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन के साथ. उसके बाद आप ये टेरर हैज नो रिलीजन, ये वाला चीज बताना चाह रहे हैं हमें. कहां पर हमें एक भी जगह बता दीजिए कि ये हिंदू की कोई डॉक्ट्रिन, ये जो आप बोल रहे हैं ना सारे 5, ये भी हमारे हिंदू उपनिषद से आता है. एकम सत विप्रा बहुधा वदांती. ये आप हिंदू एथोस है जिसको बोल रहे हैं, जो आपको पता तक नहीं है. मुझे एक जगह ऐसी दिखा दीजिए बाकी पंथों में जहां पे ये बात लिखी हो कि सारे पथ आपको एक ही ईश्वर की ओर लेके जाते हैं. मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि मैंने तो ये भी पढ़ा है कि आप अगर नहीं मानते तो आपके लिए जहन्नम वेट कर रही है. आपकी हिम्मत है, पढ़ दीजिए जरा ये एकम सत विप्रा बहुधा वदांती का एक और स्वरूप दिखा दीजिए मुझे किसी और पंथ में. से विवेकानंद भी रेडिकल थे. विवेकानंद भी इस्लाम के समर्थक थे. विवेकानंद को मानते हो नहीं मानते हो? महात्मा गांधी को मानते हो नहीं मानते हो? मैं इजी हो ही नहीं सकता, उनको जवाब ही नहीं देना है. थोड़ा इजियर कर देता हूं. अश्विनी जी, मैं आपको 5 इस्लामिक जिहाद के कन्विक्टेड केसेस बताता हूं. 5 हिंदू टेरर के केस बता दो कन्विक्टेड. आप 5 हिंदू टेरर के कन्विक्टेड केस बता दो और बोलो कि हिंदू टेरर है. मैं आपको 5 कन्विक्टेड इस्लामिक टेरर के केस बताता हूं. चलिए करिए. अश्विनी जी, मुस्कुराकर नहीं होता एम्बेरसमेंट आपका. आप राहुल गांधी के पद पे निकल चुके हैं. हो रही है कि यहां भी 5 टेररिस्ट होंगे, यहां भी 5 टेररिस्ट होंगे. अरे आप समझ पा रहे हैं, आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं बोल रहा हूं कि सारे हिंदू टेररिस्ट. हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता. हिंदू इज नेवर अ टेररिस्ट. बोल रहा हूं कि रेडिकलाइजेशन. मिस्टर अश्विनी, हिंदू इज नॉट अ टेररिस्ट. घातक है. हिंदू इज नॉट अ टेररिस्ट. रवि जी, हिंदू टेररिस्ट हो सकता है? क्या हिंदू टेररिस्ट हो सकता है? क्या हिंदू टेररिस्ट हो सकता है? टेररिस्ट कोई भी हो सकता है. अच्छा, कहीं से भी हो सकता है. अच्छा, देखो ये ओके. लेट्स नॉट टॉक ओवर ईच अदर. अश्विनी जी, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था. आई डिडंट वांट टू आई डिडंट वांट उसको रवि जी, जेंटलमैन काम डाउन. वहां इन्होंने आरएसएस से जोड़ दिया 26/11 को. आरएसएस की साजिश बताया. एक बार और पूछ रहा हूं, ऑपरेशन महादेव नाम सेक्युलर है या कम्युनल है? क्योंकि रवि जी ने यहां कहा कि कुछ और ऑपरेशन फतह रख सकते थे, कुछ और रख सकते थे. ऑपरेशन महादेव क्या है? ऑपरेशन के लिए नहीं कहा प्रणेश. मैंने बोला कि आप सारे ट्रेडिशन से ऑपरेशंस के नाम रख सकते हो. सिख ट्रेडिशन से भी है. नहीं, तो मैंने सवाल तो पूछा था, ये सेक्युलर है कम्युनल है? जो बोले सो निहाल सत्रे का ये है नारा. मैं क्या बोल रहा हूं? क्या नारा ये है? आपको क्यों प्रॉब्लम है महादेव से? कहां प्रॉब्लम है? अच्छा, अश्विनी जी बोलिए, महादेव पे बोलिए. पृथ्वीराज चौहान से पूछिए भाई कौन प्लीज. हंसना नहीं है भाई. प्रणेश, हर हर महादेव, हर हर महादेव. महादेव से कोई प्रॉब्लम नहीं है. महादेव नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी की नीयत से. भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश को हर जगह कम्युनल लाइंस पे डिवाइड करने की बात करती है. अगर आप उनका पूरा स्टेटमेंट सुनेंगे तो आप देखेंगे उन्होंने यही बोला है. इट इज नॉट अबाउट द नेम, इट इज अबाउट द इंटेंशन. एंड क्या इंटेंशन था सर? क्या इंटेंशन? एक मिनट. ऑपरेशन महादेव नाम कैसे रखा गया आपको पता है? आपको पता है ऑपरेशन महादेव कैसे रखा गया? उस रीजन में जो सबसे हाईएस्ट पीक है, माउंटेन, पहाड़ पे है. अगर कहीं हिमालयाज में कुछ हो रहा तो उसका नाम क्या रख देंगे आप बताइए? प्रणेश, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप उनके स्टेटमेंट को गलत
गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नियत पे सवाल उठाया है। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से हिंदू मुस्लिम डिवाइड करती रही है, ये कहां, who is dividing? The operation was named by the armed forces, Not by our armed forces, named after a mountain there. Where is the problem? What is this mindset? if you listen to his full statement, Listen, Mr. Mishra, I have heard the statement. If you don't listen to my question, you will never be able to answer it. I don't know what has happened to the Congress party. How can you be so disconnected? And look at Atikur Rahman. He doesn't want to be on the show, but he is sipping coffee or tea, whatever it is. आपको अगर नहीं रहना है अतीकुर रहमान जी, आप ही उठ के चले जाइए। आप क्यों विंडो में बैठ के अब टीवी पे देख लेते शो? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ब्लू स्टार, why do अरे ऑपरेशन मेघदूत भी नाम रखा गया भाई इंदिरा जी के द्वारा। ऑपरेशन ब्लू स्टार सेक्युलर था अश्विनी जी? अरे it's not about secular or communal, Pranesh. Understand his full statement. Read out his full Okay, statement. let's play out. Can we play out? Till we do that, one question, just one question. आपको लग रहा है महादेव से प्रॉब्लम है? वो जो बैठे हैं ना वहां पे उंगली उठा रहे, उनसे बोलो वंदे मातरम बोल दो। उनसे वो उंगली उठाने वाले ना, उंगली करने वाले कौन है? MIM के आदिल हसन। इनसे बोलो वंदे मातरम बोल दो, नहीं बोलेंगे। इनको बोलो भारत माता की जय बोलो, बोलते कि गर्दन पे छुरी रखो, नहीं बोलूंगा। अब भारत माता की जय में उनको सांप्रदायिक, हाउ डू यू नो नहीं बोलेंगे? अरे उनके नेता ने बोला है पार्लियामेंट में। आदिल हसन बोल देंगे। बोलो भारत माता की जय, बोलिए। परने साहब, मैं भाजपा का नहीं हूं परने साहब, मैं भाजपा का नहीं हूं जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ने रक्षा दलाली की थी। चलो ना भाई, अजहर बोलो मसूद को कंधार मैंने नहीं छोड़ा था। आईसिस के खिलाफ सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले थे, आईसिस के खिलाफ, समझे? रक्षा दलाली मैंने नहीं किया था बंगारू लक्ष्मण की तरह, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह। तुमने तो वक्त की दलाली कर दी भाई, तुमने तो मुसलमानों की जमीन की दलाली कर दी, वक्त की दलाली कर दी, अपने पैदाइश की दलाली कर रहे हो। अरे छोड़ो ना, तुम तो जान तुम्हारी। देखिए this is not right, this is not this kind of 1 minute gentlemen, please, don't let's this no Adil Hasan, what you've said is no 1 minute, this is not right Adil Hasan, this is not right, this is not right, let's not lower the discourse. He has abused my mother. If it would have been anybody else, there would have been action. But because he has privilege of being Adil Hasan, he can abuse my mother. This is not the first time. Adil Hasan, by the way, he's abused my mother even before this. Adil Hasan, this is the language of Owaisi. Do you want to apologize? Owaisi has made him abuse my mother. He has abused the mother of Pasmanda. Adil Hasan, do you want to apologize? Now Atikur Rahman won't ask for an apology for the language that Adil has used. Atikur Rahman, आप माफी मांगने बोलेंगे आदिल हसन को? ये क्या है? नहीं, क्यों बोलेंगे? अब नहीं, अब चुप हो गए ना ये, क्योंकि मेरी मां को गाली दी है। अतीकुर रहमान, आवाज आ रही है सर? I am under protest, Ganesh. I am under protest. Sir, you protest after the show. You protest after the show. आप 4 दिन तक इसी फ्रेम में बैठे रहिए. We will meet on Tuesday. You protest after the show. But I want you to take a position. Do you endorse this kind of language? I have know this thing sitting on the panel. There you go. You are exposing yourself. You are exposing yourself. Let's play out Prithviraj Chavan so that Ashwini Mishra ji is clear. ऑपरेशन का नाम तो धार्मिक आधार पर देने के सिवा उनको कुछ आता नहीं, जो भी सरकार करती है उसमें कोई रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और हिंदुत्व मिलाना चाहती है। दे आर ट्राइंग टू पोलराइज द सिचुएशन कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम लड़ाई है। Atikur Rahman has left the debate because I said protest till Tuesday. अब वो उठ के चले गए. But let's shift our attention